سب سے پہلے تو بہت مبارکباد سمر کو، ڈاکٹر صاحب کو، زارا کو. میں ان تینوں کے ساتھ میں نے گرین زون ورک شاپس پہلی دفعہ اٹینڈ کی تھی. دے آر دا موسٹ اکاموڈیٹنگ پیپل، دے آر دا موسٹ گرین زون پیپل. آپ کوئی بھی بات ان کو بتائیں، یہ کبھی آپ کو اس بات کو آپ کو بھی لٹل نہیں کریں گے اور آپ کی بات کو سنیں گے. اور ہر چیز کے، جیسے گلناز نے کہا، ان تینوں کے پاس ہر چیز کا حل ہوتا ہے. آپ زارا کو کسی وقت بھی، ایک دفعہ میں نے زارا کو فون کیا تھا، یہ میرے مقالے کا پھیلے ہوئے مقالے کا حصہ نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے زارا کو فون کیا تھا، یہ گو اسٹیشن پہ بھاگی بھی جا رہی تھی اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ اردو میں ٹائپ کیسے کرنا ہے. تو زارا وہ بھاگتی بھی جا رہی تھی اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہی تھی کہ اردو میں ٹائپ کیسے کرتے ہیں. اور اس وقت زارا مجھے نہیں جانتی تھی اور میں ان کو نہیں جانتی تھی، صرف ہم یہ جانتے تھے کہ ہم دونوں ڈاکٹر خالد سہیل کے دوست ہیں. تو یہ بہت ہی میرے لیے کمال کی بات ہے. اس کتاب کی تقریب رونمائی کی ٹائمنگ میرے لیے بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ کا آغاز کووڈ کی وبا میں کیا گیا تھا اور اس کی رونمائی اس وقت ہو رہی ہے جب ہم ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ کی طرف سے مسلسل جینوسائڈ کے آئی وٹنس ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خدا، مذہب اور انسانیت کو غزہ میں دفن کر چکے. اس سے زیادہ اس کتاب کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ نہیں چلا سکتی کہ اس میں ہمارے بچوں کے لیے امید کی کہانی درج ہے. مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی کھڑی ہے. ہمت کرو، جینے کو تو ایک عمر پڑی. گرین زون پروجیکٹ اور گرین زون لیونگ کے اردو ترجمے کے لیے کی گئی انتھک کوششوں کو ثمر بار ہوتے دیکھنا میرے لیے بہت خوش کن ہے کہ اس کی گئی محنت کی میں عینی شاہد. فروری 2020 میں جب میں نے میسنجر پر ڈاکٹر خالد سہیل کو میسج کیا تھا تو میرے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ میں ایک ایسے انسان سے ملنے جا رہی ہوں جو میری زندگی کو نیا رخ دے گا اور مجھے لائف چینجنگ پروجیکٹ کا حصہ بنا، وہ بھی زوم پر کووڈ کے دوران. جب وبا کی شدت سے سب پریشان تھے، اس وقت گرین زون ورک شاپ کو لانچ کرنا اپنے فلسفے پر اعتماد ہونے کی یقین تھا، کیونکہ وہ انتہائی غیر یقینی وقت تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک انتہائی ریڈ زون دیسی خاتون سے بات کرنے کے بعد اپنے باتھ روم سے سب سے چھپ کر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ میں نے فیس بک پر آپ کے اس پروجیکٹ کے بارے میں پڑھا ہے. اگرچہ میں رجسٹریشن کے لیے لیٹ ہو گئی ہوں، لیکن آپ پلیز مجھے رجسٹر کر لیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں سمر اور زارا سے بات کروں گا اور ان سے میری پرزور سفارش کرنے کی حامی دی. میں نے اپنے کیس کو کنونسنگ کرنے کے لیے ان کو رشوت دی کہ اگر آپ مجھے شامل کریں گے تو میں پنجابی اور سرائکی میں اس ورک بک کا ترجمہ کروں گا. ڈاکٹر صاحب جانتے تھے کہ میں ان دونوں زبانوں میں نہیں لکھ سکتی. 2 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ایک سیٹ خالی ہونے پر ہم آپ کو ان ورک شاپس میں شامل کریں. ان ورک شاپس میں شامل ہو کر جو میں نے سیکھا وہ میرے گرین زون آئیڈیا کے ریویو اور سٹوری کے نام سے اس کتاب کا حصہ ہے. جب میں نے اپنی گرین زون سٹوری لکھی تو میرا خیال تھا کہ میرے پاس اس فلسفے پہ کہنے کے لیے جو کچھ ہے میں نے لکھ دیا. لیکن جب یہ کتاب مجھے ملی اور میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس فلسفے کے بے شمار پہلو میرے سامنے پہلی بار آشکار ہوئے، جس کی 2 وجوہات تھیں. ایک وہ سفر جو میں نے اس فلسفے اور ڈاکٹر خالد سہیل کے ساتھ پچھلے 4 سال میں طے کیا. دوسری بات کہ پہلی مرتبہ میں نے اس فلسفے کو اچھے سے جاننے کے لیے کتاب انگریزی میں پڑھی تھی اور اس بار اس کے اردو ترجمے میں نے بہت ساری باتوں سے ریلیٹ کیا، کیونکہ اردو ایک طرح سے میری مادری زبان ہے. میرے خیال میں اس فلسفے کے اوپر اردو میں اس کتاب کی دستیابی اس کو عام پاکستانی تک پہنچنے اور اس کے سمجھنے میں مدد دے گی. اور ڈاکٹر صاحب کا یہ آئیڈیا بہت کمال کا ہے کہ اس کی ورک بک کا ترجمہ دیگر پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں میں ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی تک نہ صرف اس کتاب کی بلکہ ذہنی صحت کے بنیادی اصولوں کی رسائی کو آسان بنایا جائے. ذہنی امراض کے علاج میں ایک بہت بڑی رکاوٹ وسائل کی عدم دستیابی. ہر آئیڈیا جو آپ کی مادری زبان میں آپ تک پہنچے وہ زیادہ بہتر دماغ میں جڑ پکڑتا ہے. ہمارے اس کلونیل مائنڈ سیٹ کے برعکس کہ ہر چیز انگریز کی بہتر ہے. اس فلسفے کی زون اور 7 قدم سے آپ سب واقف ہیں. میں اس کے ستون پر بات کرنا چاہوں گی جس پر اس فلسفے کی اور اس کتاب کی بنیاد ہے.
4 साल पहले मैंने इसके 3 ستون आइडेंटिफाई किए थे: खुद शनासी, खुद एतमादी और खुद इंसानी। पिछले 4 सालों ने मुझे इसके चौथे ستون तक आशनाई दी। वो खुद ख्याली है, सेल्फ लव। उसका पहला ستون खुद शनासी अपनी ज़ात से आगाही का नाम है। हमारे माशरे में बहुत कम तवज्जो अपने आप को समझने पे दी जाती है। हमारे लिए फ़ैसला कर दिए जाते हैं, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा मज़हब है, ये तुमने बनना है, इससे तुमने शादी करनी है, और हम अपनी ज़ात को जाने बगैर इन फ़ैसलों को सही साबित करने की जंग में लग जाते हैं, चाहे वो हमारी शख्सियत से मुतसादिम ही क्यों ना हो। इस फ़लसफ़े में आपको अपनी अच्छाई बुराई के साथ कबूल करना सिखाया जाता है, क्योंकि तभी आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। कि हर गलती जहन्नम का दरवाज़ा नहीं खोलती। ये गलतियाँ सितारों की मानद हैं, आपको ज़हनी बहाली के सफ़र में मंजिल की तरफ रहनुमाई करती हैं। दूसरा अहम ستون खुद एतमादी है। ग्रीन जोन फ़िलासफ़ी में आपको खुद अपनी गलतियों को सुधारना है और अपनी ज़ात की बेहतरी करने के लिए कुछ टफ डिसीजंस लेने हैं। ये उनको ओन करने का नाम है कि ये एतमाद अपने अंदर पैदा करें कि अपने ज़हनी सुकून के लिए जो कदम उठा रहे हैं वो दुरुस्त हैं। ये एक जहद मुसलसल है जिसमें हर रोज़ आप अपने आप को, अपने रिश्तों को, वर्क स्पेस को और अपने इर्द गिर्द के माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइफ स्टाइल का नाम है जिसमें आप कई दफ़ा रेड जोन में जाते हैं, लेकिन इस बात से आशना होते हैं कि आप इससे निकल भी आएँ। आज भी जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप डॉक्टर खालिद सोहेल को वीडियो कॉल करें ताकि हम उन्हें आपकी रेड जोन दिखा सकें। तीसरा ستون खुद पसंदी या खुद ख्याली, अपने आप को पसंद करना और ख़्याल रखना। ये कोई गुनाह नहीं, जैसे कि इसको खुद गर्जी के साथ मिक्स कर दिया जाता। औरतों के हवाले से ये बहुत आम है, क्योंकि हर दौर, हर रिश्ते में उनसे तवक्को रखी जाती है कि वो अपना आप कुर्बान करके दूसरों का ख्याल रखेंगी। किसी भी रोल में, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उसको असार की, कुर्बानी की देवी बनाकर पेश किया जाता है। सबसे आखिर में रोटी खाने से लेकर बाप भाइयों के लिए वड्डे की ट्रॉफ़ी और जायदाद में हिस्सा ना मांगने तक ख़वातीन की कुर्बानी को नॉर्मलाइज़ कर दिया। कोई भी खातून इससे इनहराफ करे तो उस पर बुरी औरत का लेबल चस्पा किया जाता है। ख़वातीन की ग्रूमिंग ही गुड वुमन सिंड्रोम पर की जाती है। इसलिए इस किताब की सबसे बेहतरीन लाइन ज़ारा नकवी की कहानी में उनकी ग्रीन जोन वर्कशॉप की मेंबर कुंदन की थी कि उन्होंने जब अपने बेटे को कहा कि पहली रोटी मैं खाऊंगी, ये सबसे आखिर में खाना खाने और देर होने से उनकी भूख से तबीयत ख़राब हो जाती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी बात हो, मेरे लिए ये इस फ़लसफ़े की जीत है, डॉक्टर खालिद सोहेल की जीत है। मेरे लिए ये बात बहुत आम है कि एज़ अ डेंटिस्ट मैंने पाकिस्तान में माहिर नफ्सियात को ख़वातीन की तरह जिस तरह का इम्तियाज़ी सलूक करते देखा है, उसके बाद मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। ख़ातून मरीज़ की बात सुनने और समझने से पहले ये प्री सेट नोशन उनके दिमाग में बैठी होती है कि ये ख़ातून है, इसको शिकायतें करने, बोलने की आदत है। इसलिए ख़वातीन का हर तरह का डिप्रेशन, एंजाइटी, हत्ता कि सीरियस मेंटल इलनेसेस, शिज़ोफ्रेनिया को भी इसी खाते में या मज़हब से दूरी, बेराह रवी, सब्र और इसार के फ़िक़दान और बाबों के जिन भूतों के खाते में जाते देखा। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि माल्टन वुमेन काउंसिल के ज़रिए इमिग्रेंट इंडो पाक ख़वातीन इस फ़िलासफ़ी से इस्तिफ़ादा करें कि हिजरत ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा मसाइल का बाइस बनती है। जहाँ उनका घर, उनका वतन उनसे छूट जाता है, वहाँ बेहद वक्त 2 कल्चर्स में ज़िंदा रहना पड़ता है। मौशी मसाइल की वजह से उनको काम करने की इजाज़त तो दी जाती है, लेकिन ख़ुद साख्ता मशरक़ी रवायात की लक्ष्मण रेखा के अंदर। डॉक्टर खालिद सोहेल को मैंने कभी किसी खातून को बेलटल करते नहीं देखा। वो ग्रीन जोन फ़लसफ़े को मर्द और औरत की बराबरी की बुनियाद पर तरवीज करते हैं। ये एक मेडिकल पर्सन के प्रोफेशनल होने की दलील है कि वो जेंडर बायस नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ ये कमाल नहीं है, बल्कि मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात आम लोगों तक उनकी रसाई है। आपने उनको मैसेज किया, आपको लाजमन जवाब आएगा। आप टोरंटो में मौजूद हैं, वो आपको मिलने की दावत देंगे। और अगर आप मेरी तरह के खड़ूस हैं और किसी से जाकर मिलना नहीं चाहते, वो अपना बैग उठाकर आपसे मिलने आ जाएंगे। अक्सर लोगों को ये आम सी बात लगती है, जो कि नहीं है। कनाडा में एक प्रोफेशनल साइकाट्रिस्ट से टाइम लेने के लिए 1 साल की वेटिंग लिस्ट है और 1 मिनट मुकर्ररा वक्त से ऊपर नहीं जा सकते।
डॉक्टर साहब का रवैया उनकी इंसान दोस्ती का सबूत है और यही चीज़ इस किताब में नुमाया है। इस किताब में मुख्तलिफ तबका हाय फ़िक्र से रखने वाले लोगों की ग्रीन जोन सफ़र की कहानियाँ शामिल हैं। हर कहानी में इंसान दोस्ती और इन तीनों दोस्तों के दूसरे इंसानों के मसाइल को समझने और एकोमोडेट करने का हवाला है। मसला चाहे कुछ भी हो, उसको कभी मज़हब, लसानियत या कौम के ऊपर किसी को गैस लाइट नहीं किया गया कि ये चीज़ें हमारे कल्चर और मेडिकल प्रोफेशन में आम है। इसलिए मेरे लिए बहुत हैरत की बात होती है कि जब डॉक्टर खालिद सुहेल की दहरियत का जिक्र किया जाता है, बल्कि साथ में इस हैरत का भी जिक्र किया जाता है कि इतने इंसान दोस्त हैं लेकिन खुदा को नहीं मानते। इंसान दोस्ती का खुदा को मानने से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका जिक्र मैंने कई दफ़ा इस किताब में कहानियों में भी पढ़ा। मेरे लिए ये हैरतनाक है। मुझे पहली मुलाकात में जब डॉक्टर साहब ने अपने एथिस्ट होने का बताया तो मैंने कंधे उचकाकर उनसे उनके तबकाती निज़ाम पर बतौर माहिर नफ्सियात राय सुनना चाहिए, क्योंकि मज़ाहिब को मानने वाले एक दूसरे को नहीं मानते। एक मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इसलिए मेरे लिए ये गैर अहम है। एक मेडिकल डॉक्टर और माहिर नफ्सियात को मज़हब से बालातर होकर अपने मरीज़ों का इलाज करना होता है। इंसानियत का ताल्लुक़ मज़हब से नहीं, इखलाकियात से है और इखलाकियात का ताल्लुक़ तहज़ीब से। इसलिए लोगों को डॉक्टर खालिद सुहेल की दहरियत पर फोकस करने के बजाय उनके माहिर नफ्सियात की हैसियत पर फोकस करना चाहिए, जिनका कनाडा में 1 मिनट कई डॉलर का होता है। मेरा ख्याल है इसीलिए पहली मुलाकात में डॉक्टर खालिद सुहेल ने इस जुमले को मेरे लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया था। एक ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया राइट विंग फाशिज़म की जद में है, ये किताब इंसानियत को फोकस करती है और हर किस्म के तज़ादात से बालातर होकर नफ्सियाती मसाइल के हल और उस पर अपने इन्हिसार को तरोीज करती है, ताकि हमारे दरमियान में मजहबी क़दामत पसंदी के जो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, हम उनसे निपटने के काबिल हो सकें। ये खुद इंहिसारी इसका चौथा सतून है। ये बहुत आम है क्योंकि नफ्सियाती मसाइल के इलाज में एक बहुत बड़ा मसला तबकाती निज़ाम में पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम से खड़े होने वाले मसाइल। डिप्रेशन या एंजाइटी अगर अमीर को हो तो उसका बर्न आउट होता है, वो वर्किंग वेकेशंस पर जा सकता है, लेकिन अगर गरीब को तो वो हड हराम और काम चोर होता है। उसके पास काम ना करके अपने आप को रेस्ट देने की ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इलाज के मौके भी बहुत मौजूद हैं। इस फ़िलासफ़ी से समर और डॉक्टर साहब उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो इलाज की इस्तात नहीं रखते। उसका उर्दू में तर्जमा कर उसको आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। खुद इसकी मिसाल डॉक्टर खालिद सुहेल ने ज़ियादतीज़ के इलाज से दी है, जिसमें मरीज़ को अपना ख्याल दवाई से ज़्यादा खुद रखना पड़ता है। इसलिए मैं उनको एक सोशलिस्ट, ह्यूमनिस्ट, साइकार्टिस्ट कहती हूँ, चाहे माने या न माने। इस किताब में ग्रीन जोन फ़िलासफ़ी को बयान करने के लिए जिन टर्मिनोलॉजीज़ का सहारा लिया गया वो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, ख़ासकर इमोशनल रेन कोट की इस्तेलाह। मैं उसको ग़ुलाम अब्बास के अफसाने ओवरकोट से तशबीह देती हूँ और मेरी रेड जोन्स में डॉक्टर साहब जब मुझे उसके इस्तेमाल का मशवरा देते हैं तो मुझे बताना पड़ता है कि मेरा इमोशनल ओवरकोट गरीब का ओवरकोट है जिसमें बड़े बड़े सुराख हैं, लेकिन इसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाई। मेरे लिए खाना पकाना किसी मुसीबत से कम नहीं। और इस ओवरकोट का इस्तेमाल मैंने अपने फ़ोन पर मुस्तकिल ऐसी चीज़ों पर लगा कर किया जिन मौज़ूआत के ऊपर मैं लिखने का इरादा रखती हूँ, और अपने ज़हन में तरतीब शुदा लाइन्स भी मैंने इसी दौरान अपने फ़ोन में टाइप की। मेरे लिए इंतहाई रेड जोन काम के दौरान ग्रीन जोन में रहने में मदद करते हैं। मेरे किचन में नेल्सन मंडेला, चे गवारा, ख़ुद डॉक्टर खालिद सुहेल, एडवर्ड सईद, नोम चॉम्स्की सबकी आवाज़ गूंजती है। मूड की मुनासबत से फरीदा खानम और सिकविंदर भी सुनाई देते हैं। शाहरुख और मिकी माउस भी नाचते दिखाई देते हैं। इसकी अहमियत खासकर क्रिएटिव मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनको एक रवायती सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए एक ऐसा कोट हमा वक्त चाहिए जो उनकी रवायात और क़दामत पसंद सोच के हामिल अफराद से हिफाजत कर सके। इस तरह डॉक्टर खालिद सुहेल की तजवीज़ करदा फैमिली ऑफ हार्ट को मैंने ग्रीन जोन की वर्कशॉप्स में बनते देखा। मैंने खुद ऐसे ग्रीन जोन दोस्त पाए जिनसे हज़ारों मील की दूरी के बावजूद मैं दिल की बात कह सकती हूँ और वो बग़ैर कहे समझे सुने मेरी हर बात समझ आते हैं। अपने वालिद के जाने के बाद ईदें और जन्मदिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होते हैं, और उस दिन मुझे अमेरिका से सपना चोपड़ा की कॉल आती है। वो मेरे से ज़्यादा रो रही होती हैं, मुझे उनको चुप कराना पड़ता है। उन्होंने कभी मेरे वालिदैन को नहीं देखा, लेकिन वो इस दुख से आशना है और जानती हैं कि मुझे उस वक्त नसीहत की नहीं,
ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جس کے ساتھ میں اپنی یادیں، اپنے ریگریٹس، اپنی خوشیاں، اپنے دکھ ریلیو کر سکوں۔ اس افراتفری کے دور میں کسی کے دکھ کے دن یاد رکھنے سے زیادہ گرین زون کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈاکٹر خالد سہیل کے فلسفے کی کامیابی ہے۔ جس طرح سے سمر نے اس فلسفے کا استعمال اسپیشل نیڈ بچوں کے ساتھ کیا ہے، وہ بہت کمال ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ایک دن اس فلسفے کو معذور افراد کے لیے عام کیا جا سکے گا، اور تیسری دنیا کے ممالک میں جہاں عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل ہے، یہ ان افراد کی زندگی کو آسان بنا سکے۔ یہ میرے والد کا ایک خواب ہے جنہوں نے ملتان میں سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی بنیاد اسی نظریے پہ رکھی تھی۔ میں اس کتاب کو نفسیات کی پاکٹ بک کہوں گی۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز اس بات سے آشنا ہوں گے کہ پاکٹ بک کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی فلسفی تمام انسان اپنی ضرورت کے مطابق اپنے لیے ٹیلر میڈ فٹ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی اس فلسفے کی اور اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ فلسفہ اس کتاب کے ذریعے تمام مارجنلائزڈ کمیونٹیز تک پہنچے، اور وہ علاج جس کو امیروں کا چونچلا کہا جاتا ہے وہ غریب عوام تک رسائی حاصل کر سکے، اور وہ بجائے نشے کا سہارا لینے کے گرین زون فلسفی کا سہارا۔ اور سمر اور ڈاکٹر سہیل نے اپنے ماضی کے حوالے سے جس طرح کھول کر اپنی کہانی عام کاری کے سامنے رکھی، وہ اس تہذیب کا حصہ ہے جس میں انسان دوستی ان کو وراثت سے ملی ہے، اور اس کا حق انہوں نے بخوبی ادا کیا ہے۔ مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سارا علی صاحبہ۔